Hi everyone. Today we are solving exercise 6.1. The questions in this exercise are based on definite integration, the very basic one. तो हमें पहले normally integrate करना है और फिर ये दो limits apply करने हैं. So now let us start with the first one. So first question में we have to integrate 1 divided by root x from 4 to 9. Okay. So first of all, what is 1 divided by root x? 1 divided by root x मतलब x raised to minus half, क्योंकि नीचे होता तो x raised to half होता, ऊपर आ जाएगा तो x raised to minus half होगा. अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा +1 और फिर उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा उससे. सो इसमें अगर मैं +1 करती हूँ देन इट एक्चुअली बिकम्स x raised to half. So this is equal to x raised to half divided by half from 4 to 9. अभी पहले 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके पहले इस 2 को भी ऊपर लेके जा सकते हैं. सो 2 9 raised to half minus 2 4 raised to half. raised to half मतलब स्क्वायर रूट करना है, राइट? पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, फिर हम लोअर लिमिट डालते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. So 9 raised to half is equal to 3. So this is 2 into 3 minus this is 2 into 2. So therefore we have 6 minus 4 which is equal to 2. Okay. Next question करते हैं अभी. Next question में we have integration of 1 divided by x plus 5 from minus 2 to 3. 1 divided by x plus 5 is 1 divided by ax plus b वाले टाइप का. This is log of x plus 5 रहेगा and then we have to divide by the coefficient of x. यहाँ पे that is 1, so we don't have to divide by anything. So therefore इसका integration is equal to log of x plus 5. इसमें हमें लिमिट्स अप्लाई करनी है -2 से लेके 3 तक. पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं. So we get log of 3 plus 5 is log 8 and then we apply the lower limit. So we get log of -2 plus 5 मतलब log 3. So minus log 3. This is of the form log a minus log b, which now we have done many times, is equal to log of a by b. Okay. So therefore our answer is log of 8 by 3. Now let's do the next one. In the third question, we have integration from 2 to 3 of x divided by x square minus 1 dx. अब इस क्वेश्चन में I have two ways to do this. One is I can substitute x square is equal to t, तो फिर ये होगा डेरिवेटिव, फिर हमें लिमिट्स भी चेंज करना होगा, या फिर हम लोग -1 + 1 कर सकते हैं. तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ. So first I'll do the one where we'll do -1 and +1 in the numerator. So this is method 1. So this is equal to x minus 1 plus 1 divided by x square minus 1. This is from 2 to 3 dx. Okay. Now what I will do is मैं इसको सेपरेट करूंगी, तो मुझे मिलता है this is x minus 1 divided by x square minus 1 plus 1 divided by x square minus 1. Okay. So this is from 2 to 3. This is also from 2 to 3. दोनों में dx. अभी इसमें तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो here we get 1 divided by x plus 1 integration from 2 to 3 dx, and यहाँ पे we have integration from 2 to 3 1 divided by x square minus 1 dx. Fine. Now this one is just log of x plus 1. We have to apply 2 to 3 to this entire thing. And 1 divided by x square minus 1, वो हम उस फॉर्मूले से कर सकते हैं. So it will be 1 divided by 2 into a, which is 1. Then log of x minus a. So x minus 1 divided by x plus 1. Right? This is of the form x square minus a square. इसमें भी 3 और 2 अप्लाई करना है. पहले 3 अप्लाई करते फिर 2 अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों जगह पे. So log 4 minus log 3. And यहाँ पे we have half and
and this will be log of 2 divided by 4 minus half log of 1 divided by 3. ठीक है, अभी थोड़ा कंबाइन कर लेते हैं सब कुछ. तो उसमें वी गेट दैट हियर वी हैव log of 4 divided by 3 and here we have half, and इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो वी गेट half divided by 1 by 3 which is equal to, will just be 3 by 2. अगर हमें इन दोनों को कंबाइन करना होगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी एक हाफ होना चाहिए, या फिर इसके हम स्क्वायर रूट करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हम स्क्वायर रूट करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक साथ हाफ बाहर निकालेंगे. तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये होगा 4, क्योंकि ये हाफ ऊपर चला जाता है तो स्क्वायर रूट होता है ना, इंटू √3 डिवाइडेड बाय नीचे तो है 3 इंटू √2. ठीक है, ये कैंसिल होने पे वी गेट दिस इज लॉग ऑफ 2√2. मैंने कैंसिल किया 4 और √2. 4 को हम लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2, एक √2 और एक 2 कैंसिल होगा तो √2 आएगा, एंड नीचे आएगा √3 क्योंकि 3 और √3 कैंसिल हुआ है. अभी ये है स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का, एंड हेंस आई कैन राइट दैट दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ 8 by 3. ठीक है, तो ये एक तरीका है. मेरे हिसाब से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सब्स्टिट्यूशन से इजियर होगा, तो हम लोग वो वाले मेथड से भी अभी ट्राई करते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो वी विल राइट दैट पुट x² - 1 इज इक्वल टू t. ठीक है, सो दैट वे 2x dx इज इक्वल टू dt. सो देन व्हेन x इज इक्वल टू 2 तभी t का वैल्यू क्या होगा, t is equal to x² मतलब 4 minus 1, so t will be 3. And when x is equal to 3 तब t क्या होगा, it will be 9 minus 1, so t will be 8. Okay, अभी सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, तो क्या आएगा, we will get integration from 3 to 8. अभी सब कुछ t में लिखना है. 1 divided by t, x dx है, 2 नहीं है तो वो नीचे जाएगा, so it will become dt by 2. This is equal to half log of t integration from 3 to 8, which is equal to half log 8 minus log 3, which is equal to half log of 8 by 3. And that's it. ये है हमारा आंसर by the second method, which I think is much easier. ठीक है, तो इस तरीके से भी you can solve your question. Now let's do the fourth question. Fourth question में we have integration from 0 to 1 of x² plus 3x plus 2 divided by √x. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले √x से सबको डिवाइड करते हैं. ठीक है, so this is equal to integration from 0 to 1. अभी x² डिवाइडेड बाय √x. अगर यहाँ पे भी नहीं समझा था ना मैंने 4 डिवाइडेड बाय √2 कैसे किया था, वो यही लॉजिक है जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ. तो x² को मैं लिख सकती हूँ एज x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई √x. ठीक है, फिर एक और x को यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एज x इंटू √x इंटू √x, तो वो हो जाएगा नीचे सिर्फ √x, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ x √x. ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आता है ना तो एक और तरीका भी है, x² को लिखो एज x⁻², और ये √x है x⁻². जब ये ऊपर जाएगा तब 2 - ½ हो जाएगा, which is 4 - 1 divided by 2 मतलब 3 by 2. ये भी सेम ही है क्योंकि ये 1 plus ½ 3 by 2. ठीक है, तो therefore this is equal to x⁻³ by 2 प्लस यहाँ पे 3x divided by √x है, मतलब इस मेथड से x⁻1 - ½ मतलब सिर्फ हाफ रह जाएगा. इस वे में वो एक कट हो जाता बस, तो 3x⁻½ प्लस 2x⁻⁻². Okay, dx. Now let us start integrating. So this is equal to x⁻³ by 2 plus 1 मतलब 5 by 2 divided by 5 by 2 plus 3x⁻½ plus 1 मतलब 3 by 2 divided by 3 by 2 plus 2
x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 मतलब अभी x रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा. दिस इज फ्रॉम 0 to 1. हर जगह पे ये 2 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर दिस बिकम्स 2/5 x raised to 5/2 first. Then here we can cancel the 3 also. So this is just 2x raised to 3/2 plus this is 4x raised to half. And now I will substitute the limits from 0 to 1. So when I put 1, I get 2/5 plus 2 plus 4. And when I put 0, I get 0 everywhere. Okay. So अभी LCM लेते हैं. So this is 6 plus 2/5. So that is 2 plus 30 divided by 5, which is 32/5. Okay. अभी next one करते हैं. Fifth question में we have integration of x divided by x plus 2 into x plus 3 from 2 to 3. Now here we have to apply partial fractions. So x divided by x plus 2 into x plus 3. This is equal to a divided by x plus 2 plus b divided by x plus 3. बराबर, दोनों अलग अलग है तो दो अलग आएंगे. अभी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. सो दिस इज x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2. If I put x is equal to -3, then we get that -3 is equal to यहाँ पे -b. So therefore b is equal to 3. If I put that x is equal to -2, then we get that -2 is equal to 1 into a. So therefore a is equal to -2. Okay. So we have got both these answers for a and b. Let us substitute this in this integral. So this is integration from 2 to 3. -2 divided by x plus 2 plus 3 divided by x plus 3 dx. अभी इंटीग्रेट करते हैं. So this is equal to -2 log of x plus 2 plus 3 log of x plus 3. किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, x का कोएफिशिएंट 1 ही है. ये 3 से लेके 2 तक करना है. पहले 3 डालेंगे तो वी गेट -2 log ऑफ, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 डालेंगे तो वील गेट log 6 माइनस, अभी जब 2 डालते हैं तब ये एक्चुअली प्लस हो जाता है माइनस माइनस करके, एंड वी हैव 2 log 4 माइनस 3 log 5. ठीक है, अभी क्या करते हैं, सब कुछ को पावर में लेके जाते हैं. ओके, और उसके बाद हम लोग जो एडिशन में उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों सब्ट्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर में जाएगा. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस log 5 स्क्वायर प्लस log 6 क्यूब प्लस log 4 स्क्वायर माइनस log 5 क्यूब. So this is equal to log of, we have 6 cube into 4 square divided by 5 square into 5 cube. So अभी ये सब कुछ ओपन करना पड़ेगा तब जाके हमें आंसर मिलेगा. So this is equal to log of 6 का क्यूब होता है 216 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय 5 raised to 5. तो मुझे पता है दैट 5 raised to 4 इज इक्वल टू 625. इसको एक और बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 3125. अभी हमें करना है 216 इंटू 16. So that is 3456. So we get that our answer is log of 3456 divided by 3125. Okay. Let us do the next question now. In the sixth question, we have integration of 1 divided by x square plus 6x plus 5. इसमें हमें डिनोमिनेटर को पहले स्क्वायर कंप्लीट करना
फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फिर पहले तो इसमें एक्स स्क्वायर का तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, लेकिन एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 इज 3, फिर 3 का स्क्वायर इज 9, 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर वी गेट ओवर हियर दैट दिस इज इक्वल टू 1 to 2 x square plus 6x plus 9 minus 9 plus 5 dx. Okay, so this is equal to 1 to 2 1 divided by x plus 3 the whole square minus 4 dx. Now we can directly apply the formula. Here we have 2 square and this is x square. So this is 1 divided by 2 into a, which is 2 over here, log of x plus 3 minus 2 divided by x plus 3 plus 2. Okay, and इसमें we have to apply the limits. Always remember ये 4 is 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखोगे तो मिस्टेक नहीं करोगे, वरना यहाँ पे मिस्टेक से +4 -4 कर सकते हो। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 log of, जब मैं 2 डालती हूँ तभी आई गेट 2 + 3 - 2, सो मुझे सिर्फ 3 मिलता है एक्चुअली, एंड जब मैं 2 डिनोमिनेटर में डालती हूँ तभी आई गेट 7 minus 1/4 log of, when I put 1 I get 1 plus 3 which is 4 minus 2, so that is 2, divided by here I get 6. Okay, so therefore this is equal to 1/4 log of 3/7 into 6/2. So इसको कैंसिल कर सकते हैं and we can write this as 3. So our answer will be 1/4 log of 9/7. Seventh question में we have integration of 2x plus 1 from 0 to a dx is equal to 2. हमें a का वैल्यू ढूंढना है, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है जस्ट x. दिस इज फ्रॉम 0 to a and this answer is equal to 2. So on cancelling this and applying a, we get that this is a square plus a and here we get 0 is equal to 2. तो ये है एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो a के वैल्यूज मिलेंगे हमें. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2. a कॉमन निकालेंगे तो वी गेट a प्लस 2, here we get -1, a plus 2 is equal to 0. Therefore we have that a minus 1 into a plus 2 is equal to 0. Therefore a is equal to 1 or a is equal to -2. Okay, so this is our answer. Eighth question में we have integration from 1 to a of 3x square plus 2x plus 1 dx is equal to 11. हमें a का वैल्यू ढूंढना है. वापस सेम चीज करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग. So this is 3x cube divided by 3 plus this is 2x square divided by 2 plus this is x, and ये हमें करना है from 1 to a. This is equal to 11. जब हम a पुट करते हैं, उसके पहले हम ये कैंसिल भी कर सकते हैं. We get a cube plus a square plus a minus ये 1 minus 1 minus 1, ठीक है, is equal to 11. So therefore we get that a cube plus a square plus a minus 3 minus 11 मतलब minus 14 is equal to 0. अभी we have to find a value for a जो इसको satisfy करेगा. Okay, so we start trying. क्योंकि क्यूबिक है तो हम लोग ऐसे ही नहीं गेस कर सकते, तो हमेशा इसमें क्या करना है ना, यू हैव टू स्टार्ट बाय 1 देन -1 फिर 2 फिर -2 एंड सो ऑन. यूजुअली इसी में आंसर आ जाता है. सो 1 अगर मैं पुट करती हूँ तो व्हाट डू आई गेट, 1 + 1 + 1 -14. तो ये तो -11 है, पक्का 0 नहीं है, तो ये तो नहीं है. -1 अगर पुट करती हूँ तो -1 + 1 0 हो गया, -1 -14 तो -15 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है.
2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, विल गेट 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 - 14 इज इक्वल टू 0, तो बराबर है 2 इज अ सोल्यूशन। तो बेसिकली इसका एक रूट 2 है। अभी हम लोग को इसमें से अगर बाकी सब कुछ पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए हमें करना पड़ता है सिंथेटिक डिविजन। ये यू मस्ट हैव लर्नड इन लिमिट्स लास्ट ईयर। पहले क्या करते हैं, इन सबके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अगर सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता ना तो नॉर्मल जैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते ना, इसको डिवाइड कर लो बाय x - 2, वो भी सही है। पहले ये 1 ऐसे ही नीचे आता है, 1 × 2 करते हैं, जो भी नीचे आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वाले में, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये होगा 6 तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर दिस इज 7, फिर 7 × 2 इज 14, ये 0 आ गया, मतलब अपना क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू x - 2, क्योंकि 2 इज द रूट, इनटू यहाँ पे विल गेट x² + 3x + 7 इज इक्वल टू 0। अभी मैं एक बार इसको फैक्टराइज करने के लिए b² - 4ac ढूंढती हूँ इसका। तो इसका b² - 4ac इज इक्वल टू 9 - 4 × 7 विच इज 28 विच इज लेसर देन 0। तो इसके तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो ओनली दिस इज आवर सोल्यूशन। देयरफॉर द वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्चुअली मुझे x नहीं लिखना चाहिए, हर जगह पे a लिखना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व द 9th क्वेश्चन। इसके जैसा सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने किया था, इसमें हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, तो हम बेसिकली दिस माइनस दिस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 + x minus √x divided by, here we get 1 + x minus x dx। ओके, तो हम बेसिकली माइनस को इधर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली a + b × a - b से मैं लिख रही हूँ a² - b², तो स्क्वायर रूट हट जाता है। नीचे तो बेसिकली x - x हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, तो अभी बेसिकली डिनोमिनेटर है ही नहीं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 में 1 + x का रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1 + x raised to 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। दिस इज x raised to ½ ना, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 तो हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 0 to 1। तो इसमें पहले 1 डालते हैं, सो वी गेट दैट दिस इज 2/3, दिस इज 2 raised to 3/2 माइनस दिस इज 2/3 1 raised to 3/2, वो तो ठीक है। फिर 0 डालते हैं तो ये वाला पार्ट रहता है, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। दिस विल बिकम माइनस अगेन 2/3 ओनली, क्योंकि ऊपर का 1 raised to 3/2 है। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8, उसका स्क्वायर रूट माइनस 4/3। ठीक है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 में से हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2 × 2 × 2, तो इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो देयरफॉर वी गेट 4√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/3, जिसमें से हम 4/3 कॉमन निकाल सकते हैं। सो वी गेट दैट दिस इज 4/3 √2 - 1। 10th क्वेश्चन में वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 9x² - 1 फ्रॉम 1 to 3। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वी सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर द डिनोमिनेटर एज t। सी, बिकॉज ऊपर अपने पास x है ना, तो ये x² का डेरिवेटिव इज 2x, तो वो यूज हो जाएगा वहां पे। सो सपोज आई पुट दिस एज t, इसका डेरिवेटिव है 18x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे लेकिन 3x ही है ना, तो ये जो 6 रह जाता है उसको मैं दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ। सो 3x dx इज इक्वल टू dt बाई 6। ओके, नाउ लेट अस पुट द लिमिट्स। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, तो फिर इसमें 1 डालने पे वी गेट 9 - 1
which is equal to 8. If I put x is equal to 2, then I get 9 into 2 ka square, which is 4. So 36 minus 1 is equal to 35. So now, therefore, on substituting everything back, we get this is equal to 8 to 35. 1 divided by, this is just t and 6 भी आ जाता है dt. इसको इंटीग्रेट करने पे we get 1/6 log of mod t from 35 to 8. पहले 35 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get 1/6 log of 35 minus 1/6 log of 8. This is of the type log a minus log b. 1/6 को कॉमन लेंगे तो we get log of 35 divided by 8. And that is our answer. Okay. Now let us solve the last question. Here we have to integrate log x from 1 to 3. Log x को integrate करने के लिए we have to use UV rule. हम लिख देते हैं as 1 into log x, जहाँ पे log x को लेते हैं u and 1 को लेते हैं as v. So this is equal to log x into integration of 1 dx minus integration of 1 dx into d by dx of log x. इसको हमें करना है 1 से लेके 3 तक, which is equal to log x into x minus integration of x into 1 upon x dx. फिर उसके बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, उसका इंटीग्रेशन इज x. So this is x log x minus x from 1 to 3. On substituting, we get that this is 3 log 3 minus 3 minus 1 into log 1 plus 1. Okay, so 1 log 1 ये तो 0 हो जाएगा because log 1 is equal to 0. This is 3 log 3 मतलब log 3 cube minus 3 plus 1 मतलब minus 2. So therefore 3 का क्यूब तो 27 होता है. So this is log 27 minus 2. And that is our answer. With this, exercise 6.1 is done. I hope you have understood everything in this exercise.